Very good morning, dear students. Today I am going to explain you Unit 6 Animals Inspire, in which I will explain you about it how animals inspire to us for doing everything, and how they have patience to deal with the things and with the situations. So that we will read in this lesson, in this unit. Then after I will explain you section first of this unit. Animals are such agreeable friends. As you all know that animals are the best friend of the human being. They ask no questions. As you all know that they cannot speak. So they cannot ask you a question, but they have feelings. They pass no gradations. They can't speak. That's why they can't they can never do the criticism with anyone. Dear students, animals have the patience to uh, to deal with each and every situations. And some example I'm giving you of the some animals and the birds. Some fact about animals. First, I'm going to explain you about the geese. Geese are very useful as guard birds. Geese are known as the guard birds because they protect us. Seeing the danger, they become very noisy and fierce. जब भी वो कोई खतरा देखते हैं वो बहुत नॉइजी हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. There are 40 different species of geese. In the world, there are 40 types of geese. They fly in a V-shaped formation. Dear students, when they fly in the sky, they make a shape of V, and they fly with the V-shape formation. Now I'm talking about the ducks. Man finds ducks very valuable. Dear friend, ducks are very valuable for human beings. He uses the soft down of a duck in quills as it is very warm. डक्स डियर स्टूडेंट, जो डक्स होते हैं उनके जो फर होते हैं वो क्विल्स बनाने के लिए काम आते हैं. जैसे रजाइयाँ जो होती है उसमें उसके वो बनाने के लिए काम आते हैं क्योंकि वो बहुत ही गर्म होते हैं. एज वी नो दैट बर्ड्स दैट डक्स लिव इन द वाटर, and in the winter season they stay in the water, in the rainy season they stay in the water. How they can absorb the the coldness of the water? Because due to their fur, due to their soft down, so it becomes very warm. In addition, ducks eggs and meat are used as food. And some people use ducks eggs and ducks meat. Now we're talking about the spiders. Spiders are creepy crawlers. As we all know that spiders are the insect which crawl, and you would be surprised to know that they trap insects that are a nuisance to human beings. We know that every each and every spiders trap the insect, and they are the nuisance for the human being. क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई हमको स्पाइडर दिख जाती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं. Now we're talking about the ladybirds. Ladybirds protect the crops. They feed on aphids, plant loves or green fly. As we all know that ladybirds are the friend of the farmer. They feed on the aphids. Aphids is an insect, and ladybirds eat that insect. And plant loves and green fly also. Gardeners love to have them around. If you have also ladybird around you, then you must be happy because they keep the garden clean, and they keep each and every plant very clean. Now we are talking about the swift. Swift is a small bird that can stay in the air for 3 years at a stage without landing. दिस फ्रेंड, स्विफ्ट एक ऐसा बर्ड होता है जो कि 3 सालों तक कंटिन्यू आसमान में बिना रुके उड़ सकता है. बिना जमीन पर उतरे वो 3 साल तक कंटिन्यूसली उड़ सकता है. बट ये छोटा होता है, बट ये बहुत ही लंबी उड़ान भरता. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स. डॉग्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बट दे आर शॉर्ट साइटेड एंड कलर ब्लाइंड टू. डियर स्टूडेंट, जो डॉग्स होते हैं उनका जो स्मेलिंग पावर होता है बहुत अच्छा होता है. तो
आप सबने देखा होगा कि जो CID ऑफिसर्स होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं या फिर कोई भी इस तरह की क्रिमिनल को पकड़ने वाली जो भी गैंग्स होती हैं, उन सब के लिए उन सब के पास क्या होते हैं, डॉग्स होते हैं। क्योंकि जो डॉग्स होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा होता है और इसलिए वो बहुत जल्दी से क्रिमिनल का पता लगा देते हैं। उनका स्मेलिंग पावर तो अच्छा होता है, लेकिन वो शॉर्ट साइटेड होते हैं, उनको दूर का दिखाई नहीं देता। इवन दे आर कलर ब्लाइंड टू, उन्हें जो कलर्स होते हैं उनकी पहचान नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था कुछ एनिमल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट द सेक्शन फर्स्ट। द नेम ऑफ द सेक्शन फर्स्ट इज द ऑयस्टर। If things irritate and create trouble, should we lose our calm? जब हमें कुछ चीज़ें परेशान कर देती हैं या फिर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो क्या हमें उस वक्त हमारा पेशेंस जो होता है उसको खो देना चाहिए? द एनिमल्स इंस्पायर, लेट्स लर्न हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। एनिमल्स होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। देयर वंस was an oyster. Now I'm going to explain you the little poem of a oyster. और एक oyster था whose story I am tell. यहाँ पे जो अननोन पर्सन है वो हमें बता रहा है कि एक oyster था और मैं उसकी स्टोरी आपको बताता हूँ। Who found that some sand had gone into its shell. उस oyster ने देखा कि एक बार एक सेंट का छोटा सा मतलब एक सैंड उसके शेल में चली गई है, कुछ सैंड उसके शेल में चली गई है। इट वॉज ओनली अ ग्रेन बट इट गेव हिम ग्रेट पेन। जो डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा है कि जो सैंड होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी सी जो सैंड थी जो उसके अंदर चली गई थी, उसके शेल में चली गई थी, उसने उसको बहुत ऑयस्टर को बहुत परेशान किया। फॉर ऑयस्टर हैव फीलिंग्स ऑल्दो दे आर सो प्लेन। हम सब जानते हैं कि ऑयस्टर के अंदर भी फीलिंग्स थी। दैट मीन्स ही वॉज ऑल्सो फीलिंग द पेन। वो उसको भी पेन महसूस हो रहा था और इसलिए उसको लगा कि जो सैंड अंदर आ गई है वो उसको इरिटेट कर रही थी। नाउ डिड ही बिरेट। अब आप बताइए, क्या उसको उस ऑयस्टर को उस सैंड को बुरा भला कहना चाहिए या फिर पानी को बुरा भला कहना चाहिए? मतलब किस चीज़ को उसको भला बुरा कहना चाहिए? द हार्श वर्किंग ऑफ फेट। ये तो किस्मत की बात। किस्मत ही उसकी ऐसी थी कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो क्या वो अपनी किस्मत को कोसता? दैट हैड ब्रॉट हिम। मतलब क्या वो अपनी किस्मत को कोसता कि जो ऐसी सिचुएशन लेकर आई है। टू सच अ डिप्लोरेबल स्टेट, वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। मीन्स वो ऐसी कंडीशन थी जो बहुत बुरी थी और अनएक्सेप्टेबल। डिड ही कर्स एट द गवर्नमेंट। क्या उसको गवर्नमेंट को कर्ज करना चाहिए या गवर्नमेंट को कोसना चाहिए? क्राई फॉर इलेक्शन, या इलेक्शन के लिए उसको चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए कि आखिर इलेक्शन ऐसे क्यों, इलेक्शन में ऐसे लोगों को क्यों बुलाया गया है जिन्होंने ठीक से देखभाल नहीं की, जिन्होंने सी का ध्यान नहीं रखा, समुद्र का ध्यान नहीं रखा कि पानी कहाँ से कहाँ जाता है, या फिर सैंड किसको परेशान कर रही है ऐसा। एंड क्लेम दैट द सी शुड हैव गिवन हिम प्रोटेक्शन। और इवन उसने क्लेम भी नहीं किया कि जो सी है उसको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए क्योंकि मेरे अंदर जो सैंड है वो आ चुकी है, ऐसा वो ऑयस्टर बोलता। दैट मीन्स यहाँ पे ऑयस्टर की जो स्टोरी है वो यहाँ पर जो अननोन पर्सन बता रहा है कि ऑयस्टर को क्या ऐसा करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को कंप्लेन करना चाहिए या फिर सी की प्रोटेक्शन के लिए कंप्लेन करना चाहिए, ऐसा वो उसको बताता है। नो ही सेड टू हिमसेल्फ। अब ऑयस्टर अपने आप से कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ही ले ऑन अ शेल, जैसे कि वो शेल के अंदर था। सिंस आई कैन नॉट रिमूव इट, लेकिन वो उसको निकाल तो नहीं सकता, सैंड जो उसके अंदर जा चुकी है उसको निकाल नहीं सकता। आई शेल ट्राई टू इम्प्रूव इट, बस मैं क्या कर सकता है, वो उसके साथ धीरे धीरे रहना शुरू कर सकता है। नाउ द ईयर्स हैव रोल्ड अराउंड, अब धीरे धीरे जो समय है वो बीतता गया। एज द ईयर्स ऑलवेज डू, जैसे कि साल बीतते जाते हैं। एंड ही कैम टू हिज अल्टीमेट डेस्टिनी स्ट्यू,
इसके बाद जो ऑयस्टर था उसको एक अल्टीमेट क्या मिली, लाइफ मिली, जो एक डेस्टिनी, उसकी किस्मत ही बदल गई। स्ट्यू मीन्स एक छोटा सा अनाज, एक छोटा सा सैंड का जो दाना होता है, स्टेप से आप बोल सकते हैं। एंड द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड दैट हैड बॉदर्ड हिम सो वाज अ ब्यूटीफुल पर्ल। अब वो जो छोटा सा जो रेत का जो बारीक सा दाना था, वो जो उसको बहुत परेशान कर रहा था, वो आगे जाकर एक पर्ल, एक मोती बन गया जो उसको बहुत ही परेशान कर रहा था। ऑल रिचली एग्लो नाउ द टेल हैज अ मॉरल। अब देखिए ये सब जो इतना शाइनी वर्म क्या था, वो एक कलर और हैप्पीनेस भी था, मतलब वो कलरफुल भी था, हैप्पीनेस भी था, और इसलिए उसने उसको कहा कि ऑल रिची एग्लो नाउ द टेल हैज अ मॉरल। अब इस टेल जो ये छोटी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसका मॉरल क्या है? फॉर इजंट इट ग्रैंड व्हाट कैन ऑयस्टर कैन डू दैट अ मॉर्सल ऑफ सैंड। अब देखिए यहाँ पे ऑयस्टर क्या कर सकता है, ये तो उसके भाग्य ने उसकी किस्मत नहीं बताया है। What couldn't we do? अब हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। If we would only begin, लेकिन अगर हम शुरुआत करेंगे तो ही हमें मिलेगा। With some of the things that get under our skin, अगर हमारे अंदर भी कोई इस तरह की बुराई हो या कोई इस तरह की परेशानी हमको सताने लगे या फिर कोई सिचुएशन आ जाए जिससे हम डील ना कर सके, तो उस वक्त हमें भी अपना पैशन नहीं खोना चाहिए, बल्कि पैशन से धीरे धीरे काम सोचना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। जल्दबाजी में, हरीडनेस में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जैसे एनिमल्स के अंदर फीलिंग्स होती है या फिर में पैशन होता है, वैसे भी हमारे अंदर हमें क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ताकि हम हर तरह की कंडीशन में, हर तरह की सिचुएशन में डील कर सके। थैंक यू।